The true identity, what we think, is actually not our true identity. सिर्फ मैं हूँ यही सच है. I am the consciousness. I am that I am. We all have embarked on a journey of self-discovery, and we all say this punchline that we have to be our best self version. But to be our best self version, we must know who is the self. The closer we come to the knowing that we alone create the world of our experiences, the more vital it becomes for us to discover the true identity of the one who is doing the creation, and that is the self. We all have embarked on a journey of self-discovery, and we all say this punchline that we have to be our best self version. But to be our best self version, we must know who is the self. So in my today's talk, I'll try to unlock this intense question, although 10 minutes are too less. Still, I'll try my level best to unlock this intense question. At least I'll be able to peel one layer from each soul that actually who she or he is. The true identity, what we think, is actually not our true identity. Hi, my name is Shalja Sachdeva. I am a happiness and mindset coach, a spiritual healer, and Reiki Grandmaster and a Master Tarot Card Reader. मेरी ये इंट्रोडक्शन आज से कुछ साल पहले नहीं थी. My journey is a transformation of a homemaker to a change maker. In my communication skill classes, I was told to start all the talks with a short story. सब जानते होंगे जो मुझे एक बार पहले सुन चुके हैं यहाँ. कहानियों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और उसी रिश्ते को लेकर आगे चल रही हूँ, क्योंकि हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने कोर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए. दादी नानी की कहानियों से बड़े हुए हैं. चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं. With my today's talk, I'll try to unlock this intense question that who am I and what is the true identity of mine. चलिए करते हैं 10 मिनट एक बैठक अपने ही साथ. As I told you, my communication skills teacher told me to start my talk with a story. The story goes like this. Raja Janak, the great Raja, the enlightened one, was once sleeping and sentry came. भागता हुआ उसके रूम में आया, राजा जनक के रूम में वो आया और बोला, महाराज जी उठिए. The enemy has attacked and we must fight a war. Raja got up in fractions of second and put on his armor and summoned all his army men, all his soldiers के सब इकट्ठे हो जाओ, चलो हमें एक battlefield पर युद्ध करने जाना है. In the battlefield, the war went for 2 days, and ultimately the Raja got defeated, and not only defeated, but he was wounded and bleeding heavily. And the Raja was dragged in front of the enemy ruler. जब भी मैं स्टोरी सुना रही होंगी, I request थोड़ा सा visualize करेंगे तो मज़ा आएगा. The Raja was dragged in front of the enemy ruler, and the enemy ruler shouted in a hoarse voice. ध्यान से सुनेंगे, कोट करेंगे इसे. Hoarse voice में enemy ruler ने कहा, राजा तुम हार गए हो, तुम्हारा राज्य अब हमारा हुआ. But because you are a Raja, because you are a king, so I won't kill you, but I'll exile you. इस देश से, इस किंगडम से बाहर निकल जाओ. राजा couldn't do anything, and उसने बोला एक और चेरी ऑन द केक तुम्हें मिलेगा कि कोई भी तुम्हारे राज्य का इंसान तुम्हें ना तो पानी देगा ना खाना देगा. राजा तो कुछ चलना शुरू हो गया. 2 दिन तक चलता रहा भूखा प्यासा राजा. द मोमेंट वो अपने बॉर्डर पर पहुंचा, वो इतने हताश हो चुके थे राजा जनक. बॉर्डर पर पहुंचे तो देखा 2 लोग खाना बांट रहे थे. राजा ने सोचा मैं भी इस लाइन में लग जाता हूँ, बिकॉज अब मेरे पास खाना नहीं है, खाना सबको ज़रूरी है. वो लाइन में खड़े हो गए. द मोमेंट राजा का वक्त आया खाना लेने का, दैट पर्सन सेड सॉरी, खाना फिनिश हो गया है. नाउ तो राजा couldn't take it anymore. उसने बोला कि भाई खाना भी नहीं मिलेगा, इतनी बुरी किस्मत है मेरी. द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन turned into feeling of pain. Now Raja was feeling pain. लेकिन उस इंसान को तरस आ गया. उसने बोला रुकिए, कुछ खाना, बिग हांडा, देयर वाज खिचड़ी विच वाज बीइंग सर्व्ड टू द पुअर पीपल. उसने बोला कि थोड़ी सी खिचड़ी बची है, इफ यू वांट आई कैन स्क्रैच दैट खिचड़ी एंड आई कैन सर्व इट टू यू. अब बेगर्स आर नेवर चूजर्स. राजा ने बोला ठीक है जो है दे दीजिए.
उसने वो खिचड़ी सर्व करी. The moment Raja took that bowl with his trembling hands to have that खिचड़ी, a big kite, एक बहुत बड़ी चील इतनी ऊंचाई से नीचे आई और उसने जोर से किक करा, एंड वो पूरा का पूरा खिचड़ी was spilled over the floor. Now तो राजा couldn't take it anymore. बोला भाई किस्मत ही बुरी है, कुछ नहीं हो सकता, मेरा ना खाना है ना पानी है, जो बेचारा भीख में मिला था वो भी नहीं मिला. सो राजा हाहाकार मचाता हुआ, क्या मचाता हुआ? हाहाकार मचाता हुआ कि भाई एवरीथिंग इज फिनिश्ड, और डस्ट में रोल करने लग गया. ही केप्ट ऑन रोलिंग इन द डस्ट उस मोमेंट तक जब तक उसके कानों में एक आवाज नहीं पड़ी, महाराज जी उठिए, क्या हो गया, जागिए. सो हियर वी कम टू अ कंक्लूजन दैट इट वाज अ नाइटमेयर. वो एक बुरा सपना था. बट राजा जनक हैड एन एनालिटिकल माइंड. So he took that situation and he really wanted to learn something from it. तो राजा ने उठकर बोला, सब मेरे पीछे बोलेंगे, राजा ने उठकर बोला, ये सच या वो सच? क्या बोला राजा ने? ये सच या वो सच? सेंद्री इतना घबरा गया, बोला ये क्या, ये सच है वो सच? वो भागता वो क्वीन के पास गया और बोला, रानी जी महाराज जी को कुछ हो गया. वो बोल रहे हैं ये सच या वो सच. रानी भागती हुई कमरे में आई और कमरे में आते ही और रूम में आते ही उसने बोला, क्या हो गया महाराज जी? बोले ये सच है वो सच. जो भी जितने भी कंट्री में आए, ये सच है वो सच, क्या बोल रहे थे सब? ये सच या वो सच. द नेक्स्ट डे पैलेस रूम में राजा बैठे थे, बोले ये सच है वो सच. ये खबर पूरे किंगडम में वाइल्ड फायर की तरह फैल गई. एवरीबडी वाज नाउ विस्परिंग. यू कैन विस्पर इन द ईयर ऑफ द वन हु इज सिटिंग बिसाइड यू, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच, इज दिस ट्रू और दैट वाज ट्रू. तो करते करते किंगडम में साइड से अष्टवक्र मुनि, दिस एक्चुअली स्टोरी इज फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद. मांडुक्य उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट उपनिषद बट द टफेस्ट वन. लाइक हरी मिर्च, तीखी मिर्च छोटे में अपना काम कर जाती है. मांडुक्य उपनिषद वेरी गुड उपनिषद. तो अष्टवक्र मुनि ने बोला, ही वॉज अ अकल्ट सेज, ही न्यू एवरीथिंग. उसने बोला कि मुझे ले चलो राजा के पास. किंगडम में राजा पैलेस रूम में वो एंटर हुए अष्टवक्र मुनि. उन्होंने बोला, राजा जी कैसे हैं, राजा जी कैसे हैं? राजा ने बोला ये सच या वो सच. अष्टवक्र मुनि ने पूछा, आप यहाँ बैठे हैं, क्या यहाँ पर जिस टाइम आपके पास फीलिंग्स ऑफ पावर, फीलिंग्स ऑफ लव, फीलिंग्स ऑफ डिवोशन है, क्या आपके पास चील है? तो बोले नहीं है. बोले वहाँ थी? बोले हाँ, मगर मैं वहाँ भी था. बोले और यहाँ? बोला मैं यहाँ भी हूँ. तो उसने बोला, राजा ना ये सच ना वो सच. तो राजा जी ने बोला कि नीदर दिस इज ट्रू नॉर दैट वाज ट्रू, देन व्हाट इज द ट्रूथ? तो उन्होंने बोला, ना ये सच ना वो सच, सिर्फ तू सच. सो हियर वी कम टू अ कंक्लूजन. नीदर वी आर अ ड्रीमर नॉर वी आर अ वेकर. वी आर, आई एम नॉट अ ड्रीमर, आई एम नॉट अ वेकर, आई एम दैट आई एम. सिर्फ मैं हूं, यही सच है. This is a profound statement. I am. Whatever we put in front of it, it becomes our reality. Unconsciously, अब राजा के पर राजा दोनों स्टेट्स में था, उसमें भी था और इसमें भी था. वो कनेक्ट कर लेते पास्ट के साथ और ये कनेक्ट कर लेते प्रेजेंट के साथ. बट द मोमेंट राजा वॉज कॉन्शियस, ही कुड रिमेंबर दैट. उन्हें याद था. हम लोग भी प्रेजेंट में जी रहे हैं, बट प्रेजेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे, इट इज प्री-सेंट. We're not living in the present, we are living pre-sent. पिछली वाली कुछ information already execute कर रहे हैं. So using this profound statement, I come to a conclusion that I am the consciousness, I am that energy which was present in both the state. Either you are unconscious or you are conscious. We are living unconsciously, we are creating our life. We should create a conscious life by using this profound tool, I am. सब मेरे आगे repeat करेंगे. Keeping your right hand on your heart, left hand on your lap, facing upwards towards the roof, and close your eyes with deep gratitude and emotion generated in your heart. I am healed, whole, and complete. I am the power. I am the energy who is creating my reality. I am the consciousness. I have the power to create my life. I am that I am. शुक्रिया.